Assalamualaikum. How are you class? Welcome back to your KG2 class. How are you all? I hope everyone is fine by the grace of God. Today we are going to do our English work. Take out your English books, World of Letters. Open your books, page number 28. Today we will going to start to do our page number 28. All this work you have done before. आप सब ये पहले काम कर चुके हैं. Today we are going to do our sky letter words. Before we have done letter L, you can see T, B, and today we are going to start letter D, F, H and K. These all are sky letters. Sky letters are those letters which starts from the red line and end to the second blue line. You can see it's written over here. It starts from the red line and it ends on the second blue line. These letters are called sky letters. Write today's date, 14th September 2020, and write CW. Date and CW. Let's meet the red letter D. Which letter we are going to do today? Letter D. And you all know first we have to trace and then we have to write the first beginning sound in front of all the pictures. You can see all the pictures. First start from the dot and make D. Come down and then turn and turn around. And after writing D, you have to complete these pictures with their beginning sounds. Number 1, it is duck. The next one, the dolphin. Next, the drum, the doctor, the dog, and the deer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altogether there are 6 pictures and we have to write the beginning sound of all these pictures. And all the beginning sounds are D. You can see the duck, the dolphin, the drum, the doctor, the dog, the deer. Then they said take the pictures through the maze to the letter D. Now what we have to do, you can see these lines. Take duck to D, then dolphin also to the D, drum also to the D. We have to match all these letters, all these words with the D. As I am doing for you, you can see you have to match in these lines. Next, come down, you can see a box over here. You have to draw a picture. You can see 6 pictures are drawn on the page. You can take any picture and you can draw on this empty box. I have drawn a dolphin over here. Then you have to trace D and then you have to write. And what is the sound of D? D. The dog, the duck, the dolphin, the drum, the deer, the doctor, and I have done a dolphin for you. And this was page number 28. Now come to the next page, page number 29. Same work you have to do. This is also sky letter. Trace F and then write the beginning sound of all the pictures. You can see for flower, for fish, for foot, for finger, for fan. What is this? This is not starts with the beginning sound of F because it is a pan. It is not a fan because you can see fan is down. This is a pan. Listen to the beginning sound. P. What is this? P. Pan. So trace and color the fish that begins with the letter F. What you have to do? You have to trace these fishes. You can see all these fishes you have to trace with a pencil and then you have to color them. One I am doing for you. You have to trace all these pictures which are beginning with letter F. You have to trace flower, fish, foot, finger and fan. But you don't have to color or trace pan because this is not a beginning sound of F. It is P.
So we are not going to color or trace this picture. We have to trace and color flower, fish, foot, finger and fan. Now come down, you have to trace F and you have to draw a picture. You can draw any picture, flower, fish, foot, finger or fan. I have drawn fan. So you have to draw a picture and you have to color also. Please don't leave the picture without color. Color this picture, write both these letters. You have to write D and F. In the first line you have to trace and the other two lines you have to write F. Very good. Now come to the next page. Same work you have to do on page number 30. You can see page number 30 and page number 31. Sound of H, H, K, K. What you have to do? First write today's date, write CW on both the pages and then you have to write the beginning letter. H, helicopter, H, hen, H, horse. Then come on the next side, H, hat, H, hut and H, hand. What is this? H, hand. Repeat again. H, helicopter, H, hen, H, horse, H, hat, H, hut and H, hand. Take the helicopter to the H letter H. You can see this helicopter. You have to take this helicopter to the letter of H. H. Come from here. Take a round and come down again and turn to letter H. Here comes. Is that clear? After doing this, you have to draw a picture of any you can take from here. Helicopter, hen, horse, hand, hut or hat. I have drawn a hat. And then you have to trace on these lines and write. You can see it is a sky letter. You have to start from the beginning red line and end on the second blue line because it is a sky letter word. Then K, you have to write again beginning sounds: K, kangaroo, K, kettle, K, key, K, kite, K, king. And what is this? It is a boy. So we have to write B, boy. It doesn't match with K. So we have to write B. Draw a line to lead the kangaroo to the pictures that begins with the letter K. So we have to match K with kangaroo, kettle with K, key with K, kite with K and king with K. But we don't have to match boy because this sounds not match with letter K. Then come down. Let me repeat again. K, kangaroo, K, kettle, K, key, K, kite and K, king. But we have to write boy, but we don't have to match with K. Come down again. This is a sky letter word. You have to write on the top line and the other two lines. First tracing and then writing. I have drawn a key. And you can draw anything you can see from the top. You can draw a king, a kite, a kettle or a kangaroo. But I have done a key for you. Is that clear, everyone? You have to do this work and your homework task is page number 41. Page number 41. This is your homework task. What you have to do, write today's date and write CW on page number 41. I am repeating again which page you have to do. Page number 41. This is your homework task. What you have to do, you have to fill in the first letter for the given picture and then fill in a or an in the blanks. First we have to write the first letter of the picture and then you have to write a or an with the beginning sound. As you can see, it is first picture is a axe and the second one is bat. A is a beginning. What is the beginning sound of axe? A. It is a vowel, so we have to write a and an. And this bat, bat. B is not a vowel. So what we will do? We have to write a bat. A is a vowel. We have written a and an. B is not a vowel, so we have written a. An axe, a bat. Same, a car, a dog, an egg, a fan, a goat
a hat, an igloo, a jug, a kettle, a lion, a mat, then a net, an orange. This is vowel, beginning sound is O, so we have to write an orange, a pot, a coil, a rat, a star, a tap, an umbrella, a van, a web, a X-ray, a yak, a zebra. You have to write the beginning letter also. As you can see, a car, so we have to write K also. And this is a vowel. No, it is not a vowel, so we will write a car. In the same way, you have to complete the whole page. And this is your homework for English. Page number 41. How many pages you have to do altogether? You have to do page number 28, letter D, page number 29, letter F, 30, letter H, page number 31, letter K. 28, 29, 30 and 31. And the homework task is page number 41, where you have to write the beginning sound with a letter A or an. That was your English homework. Stay safe, stay home. See you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. How are you all? Take out your maths books. Today we are going to do our maths work for class KG2. Take out your maths books, World of Numbers. We are going to do our maths book work plus our maths class copy work. First we will start our maths book work. Today we are going to do inwards counting. Inwards counting you have done in class KG1 also. Inwards countings are ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5. Same work we are going to do in our book and in our copies. So open your books, page number 31. Page number 31. You can see page number 31 is written on the corner. Open your books, page number 31. We will count, we will read, we will match, and then we will do our work in our school copy. So write today's date, write CW on the top. I can count. What you have to do, you have to read and count. Let's go aboard the number train and count from 1 to 10. You can see a train. You have on these boards, you have to count all these figures and numbers in words. Number 1, ONE1. Read with me please. ONE1. TWO2. You can see inward counting with your figure counting written on the top. ONE1, TWO2, THREE3. And you can read like this, THREE. Double E means we have written E 2 times. THREE. 3. FOUR4. FIVE5. Please repeat with me again and again, and please count the numbers also. SIX6. SEVEN7. EIGHT 8. NINE 9. TEN 10. Let's start again. ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10. Very good. Repeat this
1 till 10 counting in words at least 10 times. Then come down, you can see, match the engine to their numbers. You can see these engines, pictures of the engine. How many engines are there? We have to count and then we have to match with these letters. You can see these words, we have to match all the engines with these words. 3 I have done for you. Let's start reading. 1 little, 2 little, 3 little engines, 4 little, 5 little, 6 little engines, 7 little, 8 little, 9 little engines, 10 little engines in all. So what? This is 1 little engine, 2 little engine and so on it is till the end. 10 little engines in the all. What we have to do? You can see inwards counting. It is written all upside down. First it is 2, 1, 3, 5, 8, 7, 9, 10, 4, 6. What you have to do? You have to count from here. It is 1 and 1 engine. So keep your ruler over here and on ONE1. You can see this ONE1 and it is written over here ONE1. So we have to match 1 engine with ONE1. Then TWO2, 2 engines. TWO2. Where it is written TWO2? Yes, this is TWO2 and you have to match 2 engines with TWO2. Then THREE3. Count the engines 1, 2, 3. What you have to do? You have to match these 3 engines with words THREE3. You have to look over here where it is written 3. Here THREE3. So we have matched 3 engines with letter 3. In the same way 4 with 4, 5 with 5, 6, you can see 6, it's written over here in the last. 7, here it is. 8 engines, here it is. 9, NINE 9, this is 9. Then 10 engines, TEN 10. This was your homework of class KG2, page number 31. Inwards counting. You have to read and then you have to match all these engines with all inwards counting. Now we are going to do our next page, that is page number 32 and page number 33. It's not such difficult work. What you have to do, write today's date, write homework on the top, number names, count the things in the sky, trace and write numbers name from 1 to 5. You have to trace ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5. In the same way, after writing ONE1, you have to write ONE1. Let me do one for you. ONE1. In the same way, you have to trace 2 and write TWO2. Trace 3 and write THREE3. Trace 4, FOUR4 and 5, FIVE5. You have to trace over here and write. Trace, write. In the same way, you have to come down, fill in the correct number name. You can see how many parrots are there. 1, 2, 3. So you have to write THREE 3. They saw dash sun dash clouds. ONE. One sun. How many clouds? 1, 2, 3, 4. So we have to write 4 clouds. OFOUR 4. And next, last, dash kites and dash balloons. 1, 2. So we have to write TWO2. And how many balloons? 1, 2, 3, 4, 5. So we will write 5 balloons. FIVE 5. There are 3 parrots were flying in the sky. They saw 1 sun, 4 sky, 2 kites and 5 balloons. Very good. This was page number 32. Come to the next page. Page number 33. Write the date, homework, count the things in the water. How many things are there in the water? 6, 7, 8, 9, 10. Trace and write. As you have done page number 32, in the same way you have to write 6, 7, 8, 9, 10. And then circle the correct number. This is 6. You can see SIX 6. Circle. 7. SEVEN 7. 8. We have to circle 8. Number you can see. Which number is this? 9.
So in both, which is 9? N-I-N-E, 9. T-E-N, 10. 10, this is 10. And you have to do page number 31, 32 and 33 in your books. This is your maths book work. In the same way you have to do your copy work. How you have to do your copy work? Open your maths copies, make a title page, inverse counting, then draw a margin line, write the date. Both the lines you have to draw. You have to write the date 14 September 2020. Write the heading inverse counting. This is your CW copy, so write CW and write 1 to 10. Inverse counting you have to start. You have to draw a margin line. Write 1 over here and write O-N-E-1. Beginning, all these beginning letters should be capital. You can see on my copy, beginning numbers letter is capital. Let me repeat with you. O-N-E-1, T-W-O-2, T-H-R-E-E 3, F-O-U-R 4, F-I-V-E 5, S-I-X 6, S-E-V-E-N 7, E-I-G-H-T 8, N-I-N-E 9, T-E-N 10. First, draw the line. प्लीज़ क्लास, लाइन ड्रॉ किए बगैर काम मत स्टार्ट करें. आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को हेल्प करें लाइन ड्रॉ करने के लिए. सबसे पहले ये वाली मार्जिन लाइन और फिर टॉप की मार्जिन लाइन. इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले डेट डालेंगे 14 सितंबर 2020. इनवर्ट काउंटिंग की हेडिंग लिखेंगे. प्लीज़ टच द लाइंस वाइल राइटिंग. ये जो लाइन डली हुई है इसको टच करके आप राइटिंग करेंगे. Please, writing should be very neat and tidy. Write CW and write 1 to 10. Then write all the beginning sounds should be in capital letter. पहला word जो है वो आपका capital letter होना चाहिए. जैसे O-N-E-1 तो पहला लेटर आपका O है तो वो capital letter में होगा. प्लीज़ ये अपने बच्चे को समझाइए जब आप उनको काम करवाने बैठते हैं. और read while writing. जब आप लोग काम लिखते हैं तो उसको दोहराते रहिए. Repeat again and again while writing. O-N-E-1, T-W-O-2, T-H-R-E-E 3, F-O-U-R 4, F-I-V-E 5, S-I-X 6, S-E-V-E-N 7, E-I-G-H-T 8, N-I-N-E 9, T-E-N 10. Please do your work very neat and tidy. Repeat all this inward counting 1 till 10 at least 10 times and do exercise in your tuition copy again and again. This was your maths book and copy work. See you in the next class. Allah Hafiz. अस्सलामुअलैकुम क्लास KG2. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे. आज हम अपनी उर्दू की कॉपी, स्कूल की जो बुक किताब होती है उर्दू कॉपी सीरीज़, और स्कूल की जो अपनी कॉपी ओरिजिनल है वो वाली कॉपी का काम करेंगे. सबसे पहले अपनी स्कूल की कॉपी निकालेंगे. आज हम उसका काम पहले करेंगे. अपनी उर्दू की स्कूल की कॉपी ओपन कीजिए, नया सफ़ा खोलेंगे. आज हमारा काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, मुसव्वतें आप लोगों को पता है मुसव्वतें कौन कौन सी होती हैं? मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ. मुसव्वतें होती हैं आ, ओ, ई, ए, मतलब अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए. आज का काम आप लोग का बहुत सिंपल और बहुत आसान है. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आज की तारीख लिखनी है 14 सितंबर 2020. उसके बाद आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे, मुसव्वतों से मिलाकर 2 हुर्फी अल्फाज बनाइए. मुसव्वतें कौन कौन सी? अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए. इनसे मिलाकर आपको अपने अल्फाज बनाने हैं. वो कैसे करने हैं मैं आपको अभी बताती हूँ. सबसे पहले आप यहाँ पर 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, जैसे कि आप कॉपी में देख रहे हैं. 1, 2, 3 एंड 4. एक रेड लाइन बनी हुई है, उसके अलावा आप कितनी 4 लाइनें डालेंगे. ये लिखने के बाद पहली लाइन को छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में लिखेंगे अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सामने. बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी कॉपी बनाएंगे. फिर आप लिखेंगे पे, जे, जाल, रे, शीन, द्वार, ज़ोए, गैन. फिर से पढ़ रही हूँ मैं. पे,
चे, जाल, रे, शीन, द्वाद, ज़ोए, गैन। अब आपको इन हरूफ को मुसव्वतों से मिलाना है। कैसे मिलाना है? जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पे, ये दो हर्फी अल्फाज भी बन जाएंगे और मुसव्वतों से इनका मिलाप भी होगा। कैसे होगा ये देखिए। पहले हम बनाएंगे पे की आदि शक्ल, फिर अलिफ को उसका दोज बना देंगे। ये बन जाएगा पे अलिफ पा। मेरे साथ दोहराइए, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा। फिर आइए वाव की लाइन में। अब हमें पे को आधी अश्काल बनाकर वाव से मिलाना है। हम क्या करेंगे, पहले पे की आधी अश्काल बनाएंगे जो कि लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठकर बनेगी। उसके बाद वाव को हम इसका दोज बना देंगे। ये बन जाएगा पे वाव पो, पे वाव पो। ये क्या था? पे अलिफ पा, पे वाव पो। अब इसी तरीके से आप पहले पे की आधी शक्ल बनाएंगे, फिर उसके बाद छोटी ए को उसका दोज बना देंगे। तो ये बन जाएगा पे छोटी ए पी, पे छोटी ए पी। फिर से बोलिए मेरे साथ, पे छोटी ए पी। उसके बाद आते हैं बड़ी ए की तरफ। बड़ी ए के भी पहले पे की आधी शक्ल और फिर बड़ी ए को उसका दोज बना देंगे। ये बन जाएगा पे बड़ी ए पे, पे बड़ी ए पे। दोबारा से बोलिए, पे बड़ी ए पे, पे अलिफ पा, पे वाव पो, पे छोटी है पी, पे बड़ी है पे। जो मुसव्वतों की आवाज़ थी वो हुरूफ के साथ मिलकर उसकी कॉम्बिनेशन बन गया। कैसे बन गया? पे अलिफ, पहले क्या था? आ, जब पे को उसका दोज बनाया तो बन गया पा। ये क्या था? ओ, पे को दोज बनाया तो बन गया पो। छोटी है ई, पे को दोज बनाया तो बना पी। पहले खाली ई था, फिर बन गया पी। फिर ये खाली ए था, पे को दोज बनाया तो बन गया पे। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, चे खाली है और अलिफ भी अकेला है। चे को अलिफ का दोज बना देंगे। पहले हम बनाएंगे चे की आधी अश्काल। आप लोग देखिए किस तरह बना रही हूँ मैं। आधी अश्काल वाली अलिफ पे करते हैं ना, उसी तरीके से आधी अश्काल वाला चे बनाएंगे। चे के नीचे 3 नुक्ते, फिर अलिफ को उसका दोज बना देंगे। तो ये बन जाएगा चे अलिफ चा। इसी तरीके से चे की आधी अश्काल बनाएंगे और फिर वाव को इसका दोज बना देंगे। तो ये बन जाएगा चे वाव चो। फिर चे छोटी है ची, फिर चे बड़ी है चे। क्या बन गया? चा, चो, ची, चे। इसी तरह जाल अलिफ, जाल अलग बनेगा, अलिफ अलग, क्योंकि ये शरारती नो है, ये अपने साथ किसी भी हुरूफ को नहीं मिलाते। जाल अलिफ जा, जाल वाव जो, जाल छोटी है जी। हर जगह पे जाल अकेला बनेगा और साथ में उसका दोस्त आ जाएगा। जाल बड़ी है जे, जा, जो, जी, जे। फिर वही रे भी शरारती नो है, तो रे अलिफ रा, ये भी अकेला बनेगा। ऊपर वाले हुरूफ जोड़ दिए थे पर इनको नहीं जोड़ सकते। रे वाव रो, रे छोटी है री और रे बड़ी है रे। और इसी तरीके से आपको ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। मैं आपके साथ बनाती हूँ, आप मेरे साथ साथ करते जाइए। देखिए, शीन की आधी शक्ल, फिर अलिफ को उसका दोज बना देंगे। ये बन जाएगा शीन अलिफ शा, शीन वाव शो। शीन की आधी शक्ल, फिर छोटी ए को उसका दोज बना देंगे। ये बन जाएगा शी, शीन बड़ी है शे, शा, शो, शी, शे। फिर स्वाद, ये द्वाद के नुक्ता लगाएंगे, बन गया आधी अश्काल में। फिर अलिफ को उसका दोज बना देंगे। ये बन गया दो। फिर द्वाद वाव दो, द्वाद ये दी और द्वाद बड़ी है दे, ऐसे बनेगा। फिर ज़ोए, अलिफ को दोज बना देंगे। ज़ोए अलिफ ज़ा, ज़ोए वाव ज़ो, ज़ोए छोटी है जी और ज़ोए बड़ी है जे। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से मैंने बताया है, उसी तरीके से आपको बना रहे हैं। आइन की आधी शक्ल, अलिफ को इसका दोज बना दें। फिर आइन की आधी शक्ल, वाव को इसका दोज बना दें। फिर आइन की आधी शक्ल, फिर और उसकी छोटी ये बना दें। फिर आइन की आधी शक्ल और बड़ी ये को उसका दोज बना दें। गा, गो, गी, गे। इस तरीके से आपको ये सफ़ा पूरा मुकम्मल करना है। पढ़ते हैं पा, पो, पी, पे।
चे के साथ चा चो ची चे, जाल जा जो जी जे, रा रो री रे, शा शो शी शे, द्वा दो दी दे, ज़्वा ज़ो जी जे, वा वो वी गे। इसी तरीके से जब फे के साथ बनाएंगे तो फा फो फी फे, काफ के साथ बनाएंगे तो का को की के, और इसी तरीके से ये हमारा काम चलता रहेगा। ये था हमारा आज का कॉपी का काम। मुसव्वतों से मिलाकर 2 हर्फी अल्फाज बनाइए। अब अपना उर्दू की कॉपी सीरीज़ को ओपन करेंगे। इसका आज आप लोगों को होमवर्क का काम करना है। किस तरह से, सफ़ा नंबर 36 मतलब 36 और 37, 36 और 37 स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सफ़ा नंबर 36 और सफ़ा नंबर 37, 36, 37 किस तरह करना है, बिल्कुल सिंपल है वर्क। आपने डेट डालनी है आज की 14 सितंबर 2020 होमवर्क, फिर इस पर भी 14 सितंबर 2020 होमवर्क। ऊपर से देखकर नीचे लिखेंगे, अलिफ के नीचे अलिफ, अलिफ मता के नीचे अलिफ मता। यहाँ पर क्या है कि आपने बे लिखना है और बे को भारी हुरूफ का दोस्त बना देना है। भ, पे, फ, ते, थ, और सारे हुरूफ लाइन से जोड़कर लिखेंगे प्लीज। लाइन से उठा के कोई हुरूफ नहीं बनेगा। ठ और से को हम 2 चश्मी से नहीं मिलाते क्योंकि ये पहले ही भारी आवाज है। फिर जीम, झ, चे, छ, हे, खे, दाल, ध, डाल, ध। देखिए आपके सामने पूरा सफ़ा मैंने कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर इनके साथ 2 चश्मी है नहीं लगेगा क्योंकि इनके साथ 2 चश्मी यूज़ नहीं किया जाता। तो आप सिंपल जाल, रे, रे, जे, से लिखेंगे। फिर दूसरे सफ़े पर आएंगे, सफ़ा नंबर 37। यहाँ पर भी सीन, शीन, स्वाद, द्वा, तोय, जोय, आइन, गाइन, फे, काफ, इनको देख के नीचे लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं काफ के साथ आदि हुरूफ में लिखा हुआ है ग और घ, यहाँ पर आप लिखेंगे। बाकी किसी भी हुरूफ के साथ छोड़ ये 2 चश्मी है नहीं बनाया जाता। तो आप उनको सिंपल जैसे सीन, शीन, स्वाद, द्वा, तोय, जोय, एंगन पूरा कंप्लीट करेंगे। सफ़ा नंबर 37। फिर आ जाइए सफ़ा नंबर 38 और सफ़ा नंबर 39। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने शरारती नौ को निकालना है और उस पर दायरा बनाना है। सबसे पहले कौन सा हुरूफ है, अलिफ। इसमें कहाँ है शरारती हुरूफ, ये रहा, बे अलिफ बा। अलिफ के ऊपर दायरा बना देंगे। यहाँ पे क्या बना हुआ है, अनार। तो अनार का ये वाला जो अलिफ है बीच वाला, उसको हम शरारती नौ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रे को उसने अलग कर दिया, अलिफ ने अपने साथ रे को नहीं मिलाया। फिर आता है दाल। यहाँ पर दाल कहाँ है, चौकीदार, दाल ये रहा, इसको सर्कल करना है। दवात, यहाँ पर कहाँ है दाल, ये रहा सबसे पहला वाला। हड्डी, दाल, ये दाल लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से दाल को निकालना है दोनों नंबरों में से। फिर यहाँ पे जाल, इसमें से भी हमें दोनों में से जाल को निकालना है। गज़ा का जाल और ज़खीरा का जाल। बहुत आसान है, बीच में जो हुरूफ दिया हुआ है दोनों में से हमें वही निकाल कर अलग करना है। और इसी तरीके से सफ़ा नंबर 39 भी आपने मुकम्मल करना है। कौन कौन से सफ़े हमने कॉपी सीरीज़ में से करने हैं, सफ़ा नंबर 36, 37, 38, 39। पहले आप करेंगे अपनी कॉपी सीरीज़ का, ये वाली कॉपी का काम, और फिर अपनी इस उर्दू की कॉपी सीरीज़ में से 4 सफ़े करने हैं, 36, 37, 38 और 39। ये था आज का हमारा उर्दू की दोनों कॉपियों का काम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास फॉर KG2। Science class for KG2. How are you all? I hope everyone is fine. Today we are going to do our science work. Take out your science reader book. First we will read and then we will do a copy work. This is your reader book and this is your science copy. First we will read our chapter plant. पहले मैंने आपको plants के बारे में बताया था कि plants क्या होते हैं। दरख्त और छोटे छोटे flowers, plants, ये सब किस में आते हैं, plants में आते हैं। आज जो है हम अपना प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैसे बड़ा होता है, कैसे ग्रो होता है, कैसे पैदा होता है प्लांट, किस चीज़ से निकलता है। तो सबसे पहले अपना पेज नंबर, ओपन योर पेज नंबर 20। हैव अ लुक ऑन योर प्रीवियस वर्क, चैप्टर यूनिट 3 प्लांट्स। मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था।
ये हमारे प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उससे हम मदद से घर बनाते हैं उनकी लकड़ी से। इसी तरीके से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्लांट्स पैदा कैसे होते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 20 ओपन करेंगे। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21। फर्स्ट वी विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। पहले मैं आपको रीड कराऊंगी चैप्टर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कराएंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना कॉपी वर्क। दिस इज योर यूनिट नंबर 3.2 हाउ प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कैसे पैदा होते हैं, कैसे बड़े होते हैं। हाउ, प्लीज रीड योर रीडिंग विथ मी। हाउ प्लांट्स ग्रो। नंबर 1, प्लांट्स स्टार्ट लाइफ एज सीड। अब क्या है कि प्लांट्स की ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, अपनी ज़िंदगी वो कैसे स्टार्ट करते हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सीड। जैसे आप मैंगो खाते हैं, मैंगो के अंदर से गुठली निकलती है, उसे कहते हैं सीड। एप्पल खाते हैं, एप्पल में से छोटे छोटे से बीज निकलते हैं, वो भी सीड्स होते हैं। फिर आप लेमन ले लें, नींबू, उसमें से भी सीड्स निकलते हैं। तकरीबन आप जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी खाते हैं, सब में छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। टमाटर में भी सीड्स होते हैं, हरी मिर्च में भी सीड्स, मतलब छोटे छोटे से बीज होते हैं। जितने भी ये बीज होते हैं ये सीड्स कहलाते हैं। ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीड्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड्स को ज़मीन में दबाते हैं। प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज सीड्स। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, सीड्स की मदद से। नंबर 2, रूट्स एंड शूट्स ग्रो आउट ऑफ द सीड। अब जो रूट्स निकलते हैं और जो ऊपर वो प्लांट ऊपर ज़मीन से बाहर निकलता है, वो किसकी मदद से निकलता है, सीड की मदद से। और उसको क्या कहते हैं, जो नीचे रूट्स निकलते हैं और जो ऊपर का पार्ट होता है वो शूट। जो नीचे के जड़ें निकलती हैं उसको कहते हैं रूट्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, रूट्स। इनको कहते हैं जड़ें जो होती हैं वो कहलाती हैं रूट्स। और जो ऊपर का पार्ट उसका निकलता है, जो ऊपर की जड़ें जो निकलती है, जो ऊपर की शाख निकलती है, उसको कहते हैं शूट, जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। शूट का मतलब ऊपर ग्रो करना, बढ़ना आगे की तरफ। देन कम्स नंबर 3, द रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। The roots grow down into the soil. हम बीज कहाँ पर बोते हैं, कहाँ दबाते हैं, ज़मीन के अंदर। ये आप देख रहे हैं सर्कल, ये ज़मीन बनी हुई है, मट्टी। हम बीज को कहाँ बोते हैं, ये देखिए आपने पहली तस्वीर में देखा था, मट्टी के अंदर। जब हम बीज को मट्टी में दबाते हैं तो उसमें से उसकी क्या निकलती है, शाख, ये जड़ें। और इन जड़ों को क्या बोलते हैं, रूट्स। जैसा कि आप नंबर 3 पॉइंट में पढ़े, द रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। मट्टी के अंदर रूट्स की निकलती हैं। नंबर 4, द शूट्स ग्रो अप अबव द सॉइल। क्या बोल रहा है ये, द शूट ग्रोज अप अबव द सॉइल। अब मट्टी के अंदर तो जड़ें निकल आई, लेकिन मट्टी से बाहर क्या निकलेगा, वो सीड की मदद से प्लांट बाहर की तरफ निकल आता है। ये देख रहे हैं आप, ये सीड की मदद से ये प्लांट ज़मीन में से बाहर निकल आया, मतलब इसने अपने आप को शूट आउट कर दिया, ज़मीन में से बाहर धक्का दिया अपने आप। जब इसने बाहर धक्का दिया तो ये बाहर की तरफ निकल आया और क्या बन गया, ये शूट करके बाहर प्लांट की सूरत इख्तियार कर गया। दोबारा से पढ़ते हैं, प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज सीड्स, रूट्स एंड शूट्स ग्रो आउट ऑफ द सीड्स, द रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, द शूट्स ग्रो अप अबव द सॉइल। चलिए अब नेक्स्ट पेज नंबर 21। आगे क्या होता है, जब शूट करके ये बाहर निकल आता है प्लांट ज़मीन में से। लीव्स ग्रो फ्रॉम द शूट, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन सम प्लांट्स। जैसे जैसे ये ज़मीन से बाहर निकलना शुरू होता है, ये देखिए पिक्चर में, उसके लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। अब जब फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर पैदा करते हैं और उन्हीं फ्लावर्स की मदद से उसमें फ्रूट्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फ्लावर लगते हैं और कोई फ्रूट पैदा नहीं होता। सो 5 वाले में क्या लिखा हुआ है, लीव्स ग्रो। ये देखें आप, लीव्स, ये लीव्स निकल आए फ्रॉम द शूट। जब ये बाहर शूट करता है तो पहले एक शाख निकलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि कहलाते हैं लीव्स। फिर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में उसके फ्लावर्स निकल आते हैं और कुछ प्लांट्स में फ्लावर की मदद से उसमें फ्रूट्स निकल आते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, फ्लावर। नंबर 6, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू कीप ग्रोइंग।
अब हम लोगों को बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। हम दोपहर सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, शाम में चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाके खा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स एक ही जगह पर रहते हैं, पर इनको अल्लाह ताला इनका रिस्क इनकी जगह पर ही पहुँचाता है। ये क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी, पानी और हवा। इनको ज़रूरत होती है हवा की, रोशनी की और पानी की। अल्लाह ताला की तरफ से हवा चलती है तो ये पत्तों को हवा मिलती रहती है। जैसे हम लोग पंखे की हवा में बैठते हैं, 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, कितनी गर्मी लगती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हवा के ज़रिए इन्हें ऑक्सीजन अल्लाह ताला की तरफ से मिलता रहता है। फिर इनको मिलती है सूरज की रोशनी। अल्लाह ताला की तरफ से इनको लाइट कहाँ से मिलती है? सूरज से। फिर पानी, हम लोग इनको पानी पहुँचाते हैं जिससे ये बड़े होते रहते हैं। फिर इनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू कीप ग्रोइंग, जिसकी मदद से ये बड़े होते रहते हैं। कुछ प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स दरख्त की तरह बन जाते हैं। एक्टिविटी, गिव दिस प्लांट सम लीव्स, रूट्स, अ फ्लावर एंड सम फ्रूट्स। ये है आपका होमवर्क का टास्क। ये आप देख रहे हैं एक वास बना हुआ है, उसमें सिर्फ एक स्टेम बनाई हुई है उन्होंने। स्टेम में आपने रूट्स बनाने हैं, ये शूट तो किया हुआ है बाहर, इस पर आपने लीव्स बनानी है। फिर आपने यहाँ पे इसके फ्लावर बनाने हैं और फ्लावर के साथ ही आपने इसका कोई फ्रूट बनाना है। ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 21। यू कैन सी पेज नंबर 21। यू हैव टू डू दिस टास्क एट होम। व्हाट यू हैव टू डू इन द वास, यू कैन सी अ शूट। यू हैव टू गिव दिस प्लांट सम लीव्स, सम रूट्स, सम फ्लावर्स एंड सम फ्रूट्स। यहाँ पे आपने रूट्स बनाने हैं, इसकी लीव्स बनानी है, फिर इसके कुछ प्लांट्स, इसमें फ्लावर बनाने हैं और कुछ फ्रूट्स बनाने हैं। This was your book work. Now open your copies. This is your science copy. You can see on the top SCI. This is your science copy. Open a new page of your science copy. What you have to do? You have to draw a picture of a plant. You can see I have done for you. You have to label them: a flower, leaf, stem, roots. What you have to do? You have to write today's date. 14 September 2020. Unit, we have done unit 3.2. We have to write in the copy unit 3.2. Then draw a picture of a plant. Name the parts of colors. And color. We have to draw a picture. We have to write the names of the parts and then we have to color the picture also. ये जो आप पिक्चर बनाएंगे इसके पार्ट्स के नाम भी लिखेंगे, इन पिक्चर्स को आप कलर भी करेंगे। इसमें आप करेंगे येलो कलर, इसके बीच के पार्ट में जो बड है उसको आप करेंगे इसमें ब्राउन कलर, येलो कलर, इसके रूट शूट जो करते हैं उसमें करेंगे ग्रीन और जो रूट्स वाला हिस्सा आएगा उसमें हम करेंगे ब्राउन कलर। ये देख रहे हैं आप नीचे वाला पार्ट, इसमें करेंगे ब्राउन और स्टेम में करेंगे ग्रीन। फ्लावर येलो एंड ब्राउन, ग्रीन लीव्स एंड द डाउन पार्ट ऑफ द वाज इज ब्राउन कलर। फिर आप इसको लेबल करेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लावर, दिस इज कॉल्ड लीव, दिस इज कॉल्ड स्टेम और शूट। आप इसको शूट भी बोल सकते हैं और इसको स्टेम भी बोल सकते हैं। देन इन द लास्ट इट इज रूट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट, नेम द पार्ट्स एंड कलर, क्वेश्चन मार्क, देन राइट आंसर। पार्ट्स के नाम लिखेंगे, नंबर 1 क्योंकि पिक्चर हमने दूसरे पेज पे बनानी है। यू कैन सी नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फ्लावर, नंबर 2 लीफ, नंबर 3 स्टेम, नंबर 4 रूट्स। स्पेलिंग FLOWER फ्लावर, LEAF लीफ, STEM स्टेम, ROOTS roots. Number 1 flower, number 2 leaves, number 3 stem, number 4 roots. सेम वर्क आप दूसरे पेज पे भी करेंगे, यही क्वेश्चन लिखेंगे, यही वाला आंसर लिखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे इसकी सेम जैसे यहाँ पर पिक्चर बनाई थी यही पिक्चर यहाँ पर बनेगी, मतलब क्लास वर्क एंड योर होमवर्क। दिस वॉज योर साइंस कॉपी एंड बुक वर्क। In your books, page number 20 and 21, and in the copy you have to do all this work.
In the same way, you have to complete your classwork and homework. You can see flower and its names. Color the flower yellow and green this part and brown this part. This was your science work. I hope everyone liked today's work. Enjoy your work, read it, learn it. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. See you in the next class.